Wish you all very happy Republic Day. On this very auspicious day of Republic, we are going to touch upon some very important aspect of our life in this book reading series. This is the 73rd book in our book reading series, ladies and gentlemen, boys and girls. I'm told to speak in Hindi, so in this episode, in this book review series, for particularly this book, I'm going to talk in Hindi. I was just with some students in certain area, in certain region now, a few days ago, and they requested for talk in Hindi. मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं हिंदी में बात करता हूँ। राष्ट्र क्या है? हम सब मिलकर ही तो राष्ट्र बनाते हैं। हम सब देशवासी अगर स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी तरक्की पे ही होगा। राष्ट्र यानी कि आप, राष्ट्र यानी कि हम सब। जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब हम ओवरऑल ग्रोथ या एवोल्यूशन की बात करते हैं, होलिस्टिक एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो करियर की बात आती है। करियर, राइट? सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, दोज हु आर इनटू 12th स्टैंडर्ड स्पेशली and about to sit through their board exams, wish you all very happy study time. Yeah, don't take tension. Just take it as one of the milestones of your life. Give your best shot. Wish you all the best for your board exam and maybe ongoing competitive exams. So thank you very much for being there. जब हम करियर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उलझे हुए रहते हैं। जैसे कि आप 10th में भी उलझे थे कि भैया साइंस लें, कॉमर्स लें। जब 12th में आते हैं तो उसी तरह की एक उलझन होती है, नहीं कि भाई आप क्या करें 12th के बाद में। तो जो साइंस वाले हैं, मैथ वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, वो जेई की तैयारी करते हैं। जो मेडिकल वाले हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। जो कॉमर्स के हैं, कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं थोड़े क्रिएटिव साइड में जाना चाहते हैं। ऐसे होता है यूजुअली, बट नॉट नेसेसरी दैट साइंस स्टूडेंट कैन नॉट एक्सप्लोर डिज़ाइनिंग। Now, it's a big world. There are so many platforms, काफ़ी सारे career opportunities हैं. So boys and girls, keeping this in mind कि भाई क्या career की possibilities हो सकती हैं। कई career counselor से आप मिलते होंगे, कई colleges या universities के लोग आपसे मिलते होंगे। Online बहुत से career platforms है जहाँ पे आप you'll get lot of career guidance. You go through a lot of psychometric tests. I'm also a career counselor. That is one of my strengths. Right, and those who attend my career counseling sessions, they know. Well, so in our book reading series today, I'm going to pick up a very wonderful book. There are so many books about career counseling I continuously go through. So this is one book, ladies and gentlemen, boys and girls. This is for the parents as well. This is Ultimate Guide to 21st Century Careers by Richa Dwivedi. अब रिचा द्विवेदी कौन है? रिचा द्विवेदी IIM अहमदाबाद की alumna है। She worked as a corporate banker and a stock analyst before entering career guidance in 2004. An accredited MBTI trainer, she has worked with over 10,000 people in career planning across leading schools, colleges, and as a behavioral trainer. Richa is a certified coach and has certificate in college counseling from UCLA. She is a member of the international ACAC. Richa is the author of the Ultimate Guide to 21st Century Careers. आप अगर मुझे पूछे कि करियर क्या है तो मैं कहूँगा career is not about being a warrior, but career is about being a warrior, being a life warrior. Oxford University के मुताबिक a man's progress in life is career. करियर के बारे में सोचते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, तो मोटा मोटी हमारे सामने दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है to get employed, to become an employee with some good organization. It could be in any field, as an engineer, as a designer, as an advertiser, it could be researcher, it could be anything, right? And the second option is what? To become an entrepreneur. अच्छी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी खोल दें, एक स्टार्टअप खोल दें। That's basically the two options, right? So दोनों ही सूरतों में जो स्किल सेट चाहिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं भाई ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई 100% प्लेसमेंट, लेकिन 100% प्लेसमेंट्स क्यों? तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ तो आपका जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह रहा है कि भाई यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, तो आप जानिए कि 100% प्लेसमेंट क्यों? क्या उनके कॉर्पोरेट टाइप्स हैं? क्या उनके कोलैबोरेशंस हैं?
क्या उनका पढ़ाने का तरीका इंडस्ट्री बेस्ड है, क्या उनका सिलेबस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इनपुट्स है जहाँ पे आपको जाना है। पढ़ाने वाले सिर्फ स्कॉलर्स ना हो बट इंडस्ट्री के लोग भी हो, उनकी पेडागोगी, उनके प्रोग्राम्स, उनके प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड देखें, राइट। सो ऐसी एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, अब मुझे 4 साल हो गए हैं, चितकारा यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है। आप हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं chitkara.edu.in पर। जो फ़ोन नंबर्स ने वहाँ पे दिए हुए हैं रीजन वाइज, आप किसी से बात करें, बहुत ही आला दर्जे के काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, तो आपकी काफ़ी मदद करेंगे वो करियर काउंसलिंग में। आई माई सेल्फ इज़ ए करियर काउंसलर। वेल, हम कैसे जानें कि हमारे लिए कौन सा करियर मोस्ट सूटेड है, हमारे टैलेंट्स क्या हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे पैशंस क्या हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि भाई मेरा पैशन तो इसमें, मेरा इंटरेस्ट इसमें, पर क्या ये करियर फ्यूचरिस्टिक है, क्या मैं इसमें पैसा बना पाऊंगा, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है, आगे चल के इसका क्या होगा, इसमें कितना कंपटीशन है, और मुझे इसमें अपने आप को कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो खूबियाँ हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं। टैलेंट बेसिकली क्या है कि जो विचार, जो भावनाएं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हम अक्सर रिपीटेडली करते हैं, वो हमारा एक्चुअली टैलेंट है, नहीं फिर आगे चल के वो हमारा स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे कि आई लव कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़। अगर आपको लगता है, ये पहला चैप्टर है, अगर आपको लगता है कि आई ऑलवेज कम विथ न्यू आइडियाज़, मुझे नए आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए कौन से करियर्स सूटेबल है जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। इस किताब के मुताबिक, ऋचा द्विवेदी के मुताबिक जो कह रही है, वो कहती है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। दूसरा, अगर आपके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक है आई लव क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो फिर आपने किस बारे में सोचना चाहिए, किस करियर के बारे में सोचना चाहिए। वो कहती है आर्ट, राइटिंग, फोटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर। इट कुड बी ऑन सिमिलर लाइन्स, राइट। फिर तीसरा है आई लव टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल। तो ऋचा जी कहती हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ डिज़ाइनिंग, इट कुड बी UX UI डिज़ाइनिंग, कुड बी गेम डिज़ाइनिंग, कुड बी एनिमेशन एंड गेमिंग, जैसे मैं कह रहा था। फिर है कि आपको लगता है आई लव टू इन्फ्लुएंस पीपल, मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, उनको इन्फ्लुएंस करना अच्छा लगता है, तो फिर आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग सही है, एजुकेशन एंड टीचिंग सही है, राइट। आई लव हेल्पिंग एंड केयरिंग फॉर पीपल, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो सीधी बात है सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्सेज, साइकोलॉजी, सोशल सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है आई लव वर्किंग ऑन माई ओन, राइट, तो फिर आप साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं, उन कोर्सेज के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स भी आज बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है और है, राइट। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी प्रोफेशनल होता जा रहा है। आई लव थॉट एनालिसिस एंड आर्गुमेंट्स, तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के बारे में सोच सकते हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, लॉ, भाई वकालत कर सकते हैं आप, हमारे पास भी वकालत है, हम चितकारा यूनिवर्सिटी में भी लॉ है। आई लव लॉजिकल एनालिसिस, मुझे एनालिसिस बहुत पसंद है। अगर आपको लगता है तो फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग की कई जो स्पेशलाइजेशंस है जहाँ पे लॉट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वो सोच सकते हैं। मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, डॉक्टरी के बारे में सोच सकते हैं। फिर आपको लगता है आई लव टू बी हैंड्स ऑन, कि भाई मुझे करने से अच्छा लगता है। स्किल सेट्स बहुत ही, जहाँ पे यू नीड टू सेल्फ एक्सपीरियंस डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल हैंड्स ऑन की ज़रूरत है। तो बस आप तो जानेंगे होंगे, हॉस्पिटैलिटी, यस, होटल मैनेजमेंट, कलनरी, आर्म फोर्सेस, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो अपने आप में बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है आज, राइट। ऐसी चीज़ें हैं जो ऋचा जी ने बताई कि जो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकती हैं। इनकी एक वेबसाइट है inomi.in, INOMI.in। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं जाकर कि कैसे आप अपने आप को और अच्छे से जानें कि कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है। एक एग्जांपल, सो पहला वाला जो है आई लव कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़, जिसके अंदर जैसे मैं कह रहा था एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजिंग के अंदर में क्या है, अब किताब की खास बात क्या है, फॉर्मेट क्या है, कि ऋचा जी कह रही हैं कि आपको लगता है कि यू आर लाइक मोर इनटू क्रिएटिव, आपको अच्छा लगता है नए आइडियाज़, तो कौन से करियर्स पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2, क्या क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपके स्किल सेट्स होने चाहिए। नंबर 3, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पे दी हुई है हर स्ट्रीम की, इंडिया में, इंडिया के बाहर है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के इसके अंदर नाम दिए हुए हैं, राइट। और नंबर 4,
किस तरह के रोल्स, किस तरह की सैलरी, रेम्यूनरेशन इंडस्ट्री के अंदर में है, अगर आप उस करियर के बारे में जान रहे हैं तो सब कुछ A to Z इस किताब में है। बहुत अच्छी किताब है। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट, भाई एडवर्टाइजमेंट कैसे पता चलेगा कि यू आर लाइक इनटू क्रिएटिव थिंकिंग, आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन थिंकिंग, आपको लगता है जब आप कोई टीवी पर ऐड देखते हैं, कोई भी ऐड देखते हैं, आपको लगता है कि इस ऐड में और इस ऐड को और बेहतर आप बना सकते हैं, कोई पंच लाइन, टैग लाइन आप क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, या विजुअलाइजेशन जो है, जो स्टोरी बोर्ड है, आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है जिससे लोगों में और इम्पैक्ट हो, हर तरह के लोगों में हो। जो प्रोडक्ट जिस टारगेट ग्रुप के लिए बनाया गया है, वो टारगेट ग्रुप, वो जनरेशन क्या सोचता है, आपको लगता है कि ये बेहतर होता, इसका प्रमोशन ऐसे होता, इसका कैंपेन ऐसा होता, तो नाउ यू आर इनटू एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो खैर एग्जाम्पल के तौर पे एडवर्टाइजिंग में जैसे क्रिएटिव एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है और डिजिटल एजेंसी, मोटा मोटी जो 3 एजेंसीज है। अब इसके भी सब हेड्स है, इसके कैटेगरीज है, इसके वर्टिकल्स है। जैसे क्रिएटिव एजेंसी में अकाउंट्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट, प्लानर्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर में। अकाउंट्स मतलब ये जो एरियाज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे क्रिएटिव के अंदर में कॉपी राइटर्स होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स एंड डिजाइनर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। मीडिया एजेंसी है, मीडिया एजेंसी करती क्या है, डिजिटल एजेंसी क्या करती हैं, थोड़ा देखते हैं। जैसे क्रिएटिव एजेंसी, दे मेक कैंपेन्स फॉर प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो दैट स्पीक टू देयर राइट target audience. They are traditionally structured into 2 work areas: accounts, strategies, planners and managers, and creative इसके तहत की बात, इसके वर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मीडिया एजेंसी करती क्या है? दे बुक द स्पेस दैट देयर टारगेट ऑडियंस एनकाउंटर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कुड बी मैगजीन्स, कोई टीवी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मॉल्स हो सकते हैं, होर्डिंग्स हो सकती है, जो रोड्स पे जो होर्डिंग्स लगते हैं, आप देखते हो गोरिल्ला जो मार्केटिंग चलती है, गोरिल्ला एडवर्टाइजमेंट जो चलता है बसेस, ट्रेन्स में। डिजिटल एजेंसी आप जानते हैं, दे डिज़ाइन वेबसाइट्स, प्लान सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह। सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक आइडिया है, एक इंसाइट है, आई वॉन्ट माई हाउस टू लुक लाइक अ रिच पर्सनस हाउस इवन अ लिटिल बियॉन्ड माई मीन्स इफ पॉसिबल। तो भाई इसकी टैगलाइन क्या हो सकती है? जैसे एशियन पेंट्स ने दी, ये केवल दिखता महंगा है, नहीं, अच्छी कैची लाइन है। तो ऐसे कई इस किताब के अंदर में टेबल्स दिए हुए हैं जहाँ पे इंसाइट्स है और क्या टैगलाइन हो सकती है ये दिया हुआ है। जैसे एयरटेल का आपने देख सुना होगा, जो बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन था एयरटेल का, कि लाइफ के अंदर में हर एक दोस्त ज़रूरी होता है। या फिर अगर हमारी जनरेशन के लोगों की बात करें तो हमें अभी भी याद है, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशन होता बजाज। तो ऐसे कुछ जिंगल चलते थे, ऐसे कुछ कैची लाइन चलते थे, ऐसा विजुअलाइजेशन होता था, तो बहुत इम्पैक्टफुल है, राइट। तो अब जैसे इसके अंदर में उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि इस फील्ड के जो टॉप गुरुज हैं, जो सक्सेसफुल पीपल है, वो क्या है, उनके नाम भी दिए, जैसे पीयूष पांडे, प्रसून जोशी है, आर बालाकृष्ण हैं वगैरह वगैरह, कई लोगों के नाम दिए हुए हैं। जो रोल्स है इनके, जेडी कियारे क्या होते हैं, ये करते क्या हैं एक्चुअली, अगर जब आप कॉपी राइटर बनोगे तो कॉपी राइटर का क्या रोल है। मैं सिर्फ एक का एग्जांपल दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लाइक वाइज इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज है उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं किस तरह का रोल वहाँ पे होता है, वहाँ चैलेंजेस क्या है, वहाँ सैलरीज कितनी मिलती है, वो सब दिया हुआ है इसके अंदर में। सैलरी का भी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई सैलरी, आप कम से कम सैलरी जब आप जाते हो एज ए फ्रेशर तो कितनी होती है, एंड एज वी ग्रो इन लाइफ तो फिर कितनी होती है, एज यू बिकम टॉप लीडर तो फिर कितनी होती है, इंडिया में कितनी, इंडिया के बाहर कितनी है, सैलरी के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, क्वालिफिकेशंस क्या लगती हैं, और अब एरिया वाइज वर्क ऑफ एरिया जो है उस हिसाब से क्या स्पेशलाइजेशन लगता हुआ है। और जैसे मैं कह रहा था कि लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, इनके भी इनके ऊपर नाम दिए हुए हैं। रियली अमेजिंग बुक। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, ऐसा ऋचा जी कहती हैं। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, विश यू ऑल once again all the best for your board exams and competitive exams, for getting into good university. Wish you again very happy Republic Day. Thank you very much. Jai Hind.